Page number 73, MCQ number 4. If A equal to 0.72 and R equal to 0.24, then the value of T is. Options given are 0.0, 0.04, 0.4 and 0.2. It is option number B perfect है, because what is the formula? A plus R plus T equal to 1. So 0.72 plus 0.24 plus T equal to 1. So total will be 0.96 plus T. So T is equal to 1 minus 0.96. So this is 0.04. So it is option number B. Right, new question. This is question number 5. Same, page number 73. The ratio of, this is the question, the ratio of emissive power of perfectly black body at 1327 degree Celsius and 527 degree Celsius is. तो इसमें आपको हिंट है, use Stephen's law where the emissive power of perfectly black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. So first convert in absolute. So T1 is equal to 1600 Kelvin and T2 equals to 800 Kelvin. Now E1 upon E2 is T1 upon T2 whole raised to 4. Find out. Options are 4:1. इसका हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस किया हुआ है. व्हाट्सएप पर आंसर भेज देंगे बेटा. यस, परफेक्ट है, बिकॉज दिस वी हैड डन कि इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड, ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड then E1 upon E2 temperature was 1600 and temperature is 800 raised to 4. Cancel, this is 2. So 2 raised to 4 will be 16. Next question is same reference, page number 73. This is question number 11. Calculate the ratio of mean square speeds of molecules of a gas at 30 Kelvin and 120 Kelvin. So we can take the formula for CRMS as square root of 3 RT divided by M. Now this is only a gas. So 3 R and M. All three are considered as the constants. तो आपको ये तीनों constant बोलकर eliminate करने हैं. So C is directly proportional to under root of T. So C1 upon C2 is root of T1 upon T2. Suppose options are 1:2, 1:4, 1:8 and 1:16. Send me answer. Answer is 1:2 because when you will be putting the values 30 upon 120, this is under root of 1 by 4. So it will be 1 by 2. So it is option number A.
Right, new question. Page number 73, question number 12, we have already done. Page number 73, question number 13 is, a gas in a cylinder is at pressure P if the masses of all molecules, remember this, masses of all molecules are made 1/3 of their original value and their speeds are doubled. Then find the resultant pressure. So the general formula for pressure exerted is 1/3 mass of each molecule into number of molecules into C RMS square, that is mean square speed, divided by the volume. So what we are going to change according to this question, mass of each molecule and their speeds, means this data. So you have to find the answer for P2, where you have to compare it with P1. So this will be M2 upon M1 into C2 upon C1 and bracket square. Options are, first option is 4/3P. Suppose the initial pressure was P because it is given in the question. Second answer is 5/3P. Third answer 2P. And fourth answer 7/3P. परफेक्ट है, परफेक्ट. ठीक है, तो आपके पास कैसे आया? ये जो M2 था वो हमने पुट किया, M2/M1 is 1/3 according to the given data. ठीक है, this we have put as 1/3 क्योंकि M2 1/3 हो जाता है. और जो सूरज ने बताया कि हमने जो स्पीड है उसको डबल कर दिया, तो जब आप डबल करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे 2C1 upon C1, बट ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस स्क्वायर. तो C1 विल कैंसिल, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो आंसर विल बी 4P/3. राइट, न्यू क्वेश्चन. This is page number 74 of Maharashtra State Textbook and question number 14. Show that RMS velocity of an oxygen molecule is √2 times that of a sulfur dioxide molecule at standard temperature and pressure. So it means we are taking the condition of pressure as same, temperature as same. So आपको temperature same लेना है. So what is changing over here? The mass of oxygen and mass of sulfur dioxide. तो कंपेयर करना है आपको RMS speed of oxygen upon RMS speed of sulfur dioxide. So the basic formula is C RMS is equal to √3RT divided by M. Now first of all remove all the constants. So 3R and T, all three are constants because it shows both the gases are taken at STP. So C RMS is inversely proportional to √M. So it is mass of sulfur dioxide upon mass of oxygen. So options are, आपको शो करना है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, √2 टाइम्स आपको शो करना है. 32,
तो ये 32 प्लस 32 हो गया 64. So आपके और what is the mass of oxygen? This is 32. So it is 64 divided by 32. So it is root 2. So what is CRMS speed of oxygen? This will be root 2 times that of the sulfur. ठीक है, right? New question. State textbook page number 74. Question number 15. Right? At what temperature will oxygen molecules will have same RMS speed, this is RMS speed, as helium molecule at STP. Now molecular mass of oxygen is 32 and that of helium is 4. So again at what temperature, मतलब आपको यहाँ molecular masses as well as temperature दोनों को differ करना है. So as C is equal to square root of 3 RT upon M. तो पहले चेक करो आपको किस गैस के लिए टेम्परेचर फाइंड करना है फॉर ऑक्सीजन. सो दिस विल बी C directly proportional to whole square root of T by M. So C square is directly proportional to T by M. So it means temperature is directly proportional to MC square. तो आपको जिस गैस के लिए फाइंड करना है उसको आप न्यूमरेटर में ले लेंगे डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हीलियम. दिस इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ हीलियम बिकॉज दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन एज RMS speed of oxygen molecule is same as RMS speed of helium. So putting mass of oxygen as 32, mass of helium as 4. Now what is STP temperature? Right side आ गया आपके पास 8. What is standard temperature and pressure condition? This is 273. So what will be the answer? It is 2184 Kelvin. Right, new question. This is question number 16 of page 74. Compare RMS speed of hydrogen at 127 degrees Celsius with RMS speed of oxygen molecules at 27 degrees Celsius given molecular mass of hydrogen is 2 and molecular mass of oxygen is 32. Now again the temperatures as well as the molecular masses are given different. So first taking the basic formula under root of 3 RT upon M, dealing it as a constant. So this is C directly proportional to whole root of T upon M. अब जो आपको फाइंड करना है मतलब जो अननोन डेटा है उसको आप न्यूमरेटर में ले लेंगे. So this is C हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय C ऑक्सीजन. रेशियो फाइंड करना है आपको बट क्वेश्चन में जो पहले बोला है उसको न्यूमरेटर में लेंगे. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ T हाइड्रोजन अपॉन T ऑक्सीजन. मास के साथ इनवर्स रिलेशन है तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज O2 H2. So what is the temperature of hydrogen? Kelvin conversion. So this is 400 Kelvin and Kelvin conversion of 27 is 300 Kelvin.
So this is 400 upon 300. Mass of oxygen 32. Mass of hydrogen is 2. Cut this. Now cut this 2 and 4. So this is 2. So it is under root of 64 by 3. So answer will be 8 by root 3 is irrational number. So it will remain as it is. बट अगर आपको ये कॉम्पिटेटिव्स में आ जाता है तो आप एक एस्टिमेशन निकाल के रखो. दिस इज लेस देन 2. दिस इज लेस देन 2. So answer will be greater than 4. ठीक है, answer will be greater than 4. Whenever you are finding lost word in the question, emissive power of perfectly black body will be directly proportional to T raised to 4 minus T0 raised to 4. And as stated previously, this is the heat per unit area per unit time. This proportionality sign will replace a proportionality constant, which is Stephen's constant, T raised to 4 minus T0 raised to 4. तो आपको जो भी निकालना, सपोज सिर्फ हीट वर्ड पूछा है क्वेश्चन में, तो आप ए टी दोनों को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे. सपोज रेट ऑफ हीट एनर्जी पूछा है तो आप सिर्फ एरिया को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में ऐसे. सपोज हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो आप Q बाय A को लेफ्ट में रखेंगे और स्मॉल t को शिफ्ट कर देंगे आप राइट साइड में. So based on this theory, we are taking state textbook, page number 74, question number 19. Write this: calculate energy radiated in 1 minute by a black body of surface area 100 centimeter square when it is maintained at 227 degrees Celsius. So, seeking the data of this question, आपको सिर्फ एनर्जी फाइंड करने को बोला है उन्होंने, मीन्स क्यू निकालना है. अब देखो यहाँ कहीं भी लॉस वर्ड नहीं है, आपने बॉडी को मेंटेन किया हुआ है 227 पर, आपको यहाँ ब्लैक बॉडी वर्ड भी मिल रहा है. सो यू विल बी टेकिंग गिवन डेटा फर्स्ट. फर्स्ट टाइम इज 1 मिनट टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड, 60 सेकेंड हो गया सिंपलेस्ट. एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट CGS है, कन्वर्ट करेंगे. सेंटीमीटर होता तो 10 टू द पावर -2 आता, बट स्क्वायर है तो -4 आएगा मीटर स्क्वायर. सो बैलेंसिंग बोथ, दिस इज 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर. और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया आपके पास 500 केल्विन, ऐड किया 273. ठीक है, अब ब्लैक बॉडी है तो आपने डायरेक्ट लिख दिया एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज जस्ट सिग्मा T raised to 4. एमिसिव पावर का बेसिक डेफिनेशन पुट किया आपने, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज सिग्मा T raised to 4. आपको फाइंड करना है सिर्फ Q, इन दोनों को शिफ्ट कर दो. तो व्हाट इज Q? सिग्मा T raised to 4 AT, वैल्यूज डालो 5.67, पावर लास्ट में लिखो, सिग्मा की वैल्यू हो गई है. कैपिटल T का आंसर आएगा आपके पास 500, पावर आएगी 4. कैपिटल A का आंसर है 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 60. ठीक है, अब इसको एज्यूम करो आप कि आपको लॉग से सॉल्व करना है. दोनों वेज में हम देख लेंगे.
how to solve by shortcut method and how to solve it with the help of log. So सबसे पहले आप numbers and powers को अलग अलग कर लेंगे. So this gives you Q is equal to 5.67 25 multiplied by 25 multiplied by 60 multiplied by 10 to the power -2 -8 plus 8. क्योंकि ये मिल रहा है आपको 10 स्क्वायर और 2 फोर्जा मिल जाएगा आपको 8. तो ये मैंने +8 यहाँ लिखा है, ये दोनों कैंसिल. अब आपने लिखा 5.67 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को आप एक साथ ले लो तो इससे मिलेगा आपको 150. ये एक 0 और ये एक 0 ने ये 10⁻² को कैंसिल कर दिया. सो यू गेट 25 मल्टीप्लाइड बाय 15 और पावर निल बची. ये आंसर आ गया आपके पास जूल में. तो यू मे फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली बाय NT log of 5.67 plus log of 25 plus log of 15. तो आंसर आ रहा है आपके पास अकॉर्डिंग टू बुक 2126.25 जूल. दिस इज द आंसर. ठीक है. और अगर आपको कॉम्पिटेटिव के वे में सॉल्व करना है तो आप इसको हल्का सा बढ़ा लेंगे आप इसको. सो दिस इज गोइंग टू बी 6. तो फिर से आ गया 25 6 is 150 और 150 into 15 means 15 का स्क्वायर होता है 225 and 0. तो आंसर इससे थोड़ा सा कम आएगा. तो इससे स्लाइटली कम आंसर आप ऑप्शन में चूज कर लेंगे. ठीक है. राइट. न्यू क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 74. Question number 20. Energy is emitted from a hole in an electric furnace at the rate of 20 watts when the temperature of furnace is 727 degrees Celsius. What is the area of the hole? Take Stephen's constant as, राउंड ऑफ कर दिया उन्होंने यहाँ पर, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4. So first we are going to select the data. रेट वर्ड यूज किया है तो 20 वैट मीन्स होता है जूल पर सेकेंड. तो ये आपको गिवन है Q/T. तो Q/T is 20 वैट. एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया तो दिस इज 1000 केल्विन. क्वेश्चन बहुत इजी जाएगा क्योंकि पावर फॉर्म में डील किया है. सिग्मा गिवन है और आपको फाइंड करना है एरिया. तो अभी देखो आपको कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन यहाँ गिवन नहीं है तो आप होल को मान के चलेंगे. राइट दिस होल इज एज्यूम्ड एज perfectly black body. So its coefficient of absorption is equal to coefficient of emission is equal to 1. Now what is the support for this statement? Kirchhoff's law of radiation. So you can write the emissive power of perfectly black body is just sigma T raised to 4. Putting the formula Q/AT sigma T raised to 4. So first find out the formula for
just area. So the formula for area will be, it will be Q upon T सिग्मा T रेज टू 4. तो आपको क्वेश्चन में Q by T डायरेक्टली गिवन है. दिस इज 20. सिग्मा 5.7 गिवन है यहाँ इंटू 10 रेज टू -8 और आपको टेम्परेचर गिवन है 10 रेज टू 3 रेज टू 4 लेना है. सो दिस 3 फोर्सा विल बी गिविंग यू 12. तो अगर आपको इस क्वेश्चन को बोर्ड मेथड से सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली एंटी लेंगे पहले एंड जस्ट 2 ऑपरेशंस. सो व्हाट आर दीज? एंटी log of 20 minus log of 5.7 multiplied by 12 minus 8. डिनोमिनेटर में होगा 4 तो ऊपर आकर हो जाएगा वो -4 एंड द यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर. पर अगर आपको इस क्वेश्चन को MCQs के लिए सॉल्व करना है तो आप इसको हल्का सा बढ़ा दो. ठीक है, अभी कम करना सही क्यों नहीं है? क्योंकि कम करेंगे आप 0.7 से और अगर बढ़ाते हैं आप राउंड ऑफ करते हैं तो आपको सिर्फ 0.3 से बढ़ाना है. तो अगर आप इसको बढ़ाकर लिख लेते हैं, लिखते मीन्स मान लेते हैं 6, तो ये जो आंसर होगा वो 3 के अराउंड आ रहा है. तो ये अगर 20 अपॉन 5.7 कर देते हैं आप तो आंसर जो आएगा वो 3 से बड़ा आएगा. 3 से बड़ा आएगा आंसर. एंड द पावर इज 10 to the power -4 क्योंकि वो पावर ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, राइट. न्यू क्वेश्चन ऑफ स्टेट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 21. द एमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 meter square is 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पर आपको कॉशियस रहना है फॉर द यूनिट्स. एज मैकेनिकल यूनिट गिवन नहीं है, आपको हीट यूनिट गिवन है. तो ये आपके लिए ब्लंडर क्रिएट कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. चेकिंग फॉर द ऑप्शंस. एक पॉइंट नोट कर लेंगे. अभी मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करती हूँ. If options are given in the competitive in kilocalorie, then no need to convert. But on the contrary, if options are given in the MCQ or in board even, they have given you the command that express the answer in joule. तब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. वर्क डन इज इक्वल टू जूल्स कांस्टेंट इनटू Q. तो ये जो आंसर है आपके पास किलो कैलोरी में, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वैल्यू ऑफ J से, देन वी विल बी गेटिंग द आंसर इन जूल. ये मेथड आपको लगाना है. ठीक है. सो आई एम कंप्लीटिंग द क्वेश्चन. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ heat radiated in 20 seconds, this is second, by the spherical surface. तो सपोज ऑप्शंस दिए हैं आपको 0.1 किलो कैलोरी, 0.2 किलो कैलोरी, 0.3 किलो कैलोरी. ठीक है, लेट्स टॉक फॉर 3 ऑप्शंस ओनली. देन आपके पास में पहले गिवन डेटा क्या क्या होगा चेक करो. दिस इज एरिया कैपिटल A. दिस इज Q, हीट यूनिट ही गिवन है. What is the amount of heat radiated means unknown quantity is Q, and this is time. It is time. तो आप
एमिसिव पावर का फॉर्मूला लेंगे Q डिवाइडेड बाय AT. The emissive power of a sphere of area 0.02 given है, is 0.5. ये देखो आपके पास अपॉन में भी है, so this is giving you A and this is T. तो अगर आप ये पूरा का पूरा मिला लेते हैं तो this is the emissive power. वैल्यू डाल दी 0.5. एनर्जी अननोन, एरिया पावर फॉर्म में लिखा और टाइम है 20 सेकेंड. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप 10 की पावर्स को अच्छी तरह से बैलेंस करेंगे. So to do mistake less calculation, so what is Q is equal to 0.5 multiplied by 4. I am taking numbers together, multiplied by 10 to the power -1 बचा है मेरे पास. तो अब क्लू लगाओ, जिस भी नंबर में आप 0.5 मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर अपने आप से हाफ हो जाता है. तो ये नंबर हो गया 4 के बजाय 2 अपने आप से हाफ हो गया into 10 to the power -1 and the unit is in kilocalorie according to the options. So this is option number B. Next question is question number 22 of state textbook. Compare the rates of emission of heat by a black body maintained at 727 degrees Celsius and at 227 degrees Celsius if black bodies are surrounded by an enclosure. और एनक्लोजर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है ब्लैक वर्ड से at 27 डिग्री सेल्सियस. What would be the ratio of their rates of loss of heat? अब देखो मैं यहाँ पर आपको कीवर्ड्स बताती हूँ जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देयर इज अ वर्ड लॉस. ठीक है, तो लॉस में से एस आपको ध्यान रखना है. दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन बाय, हम लोगों ने एक साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ी हुई है, प्रीवर्स्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंजेस. प्रीवर्स्ट ने बोला था कि एवरी बॉडी रेडिएट्स हीट. तो रेडिएट्स का मतलब होता है रिलेशनशिप के जैसा गिव एंड टेक. ठीक है, रेडिएट्स हीट एक्सेप्ट एट 0 केल्विन. 0 केल्विन को छोड़कर कोई भी बॉडी हीट लेगी भी और देगी भी, सिर्फ 0 केल्विन पर वो हीट को एक्सचेंज नहीं करेगी. तो आपके पास चेक करो, यहाँ दो केसेस हैं. एक बॉडी जो ज्यादा हॉट है वो 727 डिग्री पर रखी है और एक बॉडी जो थोड़ी कम गर्म है जिसका टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस. बट दोनों ही बॉडी को आपने जिस ब्लैक एनक्लोजर में रखा हुआ है, ये है ब्लैक एनक्लोजर, उस एनक्लोजर का टेम्परेचर मेंटेन्ड है 27. So this is the temperature of surrounding. This is the temperature of first body, temperature of second body. So first convert them in Kelvin. This is 1000 Kelvin. This is 300 Kelvin. And this is 500 Kelvin. अब आपको यहाँ पर ये देखना है
ये जो 727 वाली बॉडी है ये हीट देती भी है, अपने में से रेडिएट एमिट भी करती है, और ये बॉडी भी अपने में से हीट एमिट भी करती है, एज वेल एज ये दोनों जो बॉडीज हैं वो सराउंडिंग में से हीट को एब्सॉर्ब भी कर रहे हैं, दोनों बॉडीज। ठीक है, तो आपको लॉजिक्स लगाने मेनली, एंड दिस एक्शन वी आर शोइंग यूजिंग प्रीवर्स्ट थियोरी ऑफ हीट एक्सचेंजेस। तो आपके पास में जो यहाँ पर रेट आएगा उनका R1/R2 जो आएगा दैट विल बी सिग्मा T1 रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4, लॉस निकालना है, सिग्मा T2 रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4। आप डायरेक्ट रेशियो नहीं निकालेंगे, सिग्मा सिग्मा विल कैंसिल। नाउ द डेटा was T1 was 1000 Kelvin, T2 was 500 Kelvin and T0 was 300 Kelvin। ब्लैक एनक्लोजर का टेम्परेचर वैल्यूज पुट किए, 1000 रेज टू 4, 300 raised to 4 upon 500 raised to 4, 300 raised to 4। अब इसका कैलकुलेशन देखना कैसे आएगा, 2 zeros, देखो सब में आपके पास 2 zeros कॉमन है बट रेज टू 4 है, तो आपने ऊपर से ले लिया 100 रेज टू 4, अंदर बचा 10 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4, डिनोमिनेटर में से भी लिया 100 रेज टू 4, 5 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4, कैंसिल। नाउ 10 रेज टू 4 इज 10,000, दिस इज 81, 625 माइनस 81, ये आप निकाल लो। इसमें आप एक कैलकुलेशन का ट्रिक लगाएंगे, जब भी आपको इस तरह के नंबर्स में से कुछ माइनस करना होगा तो आप यहाँ देखते हैं सब्ट्रैक्ट द लास्ट फ्रॉम 10। वैदिक मैथ्स का एक वीडियो उसमें पोस्ट किया हुआ मैंने, ये सब्ट्रैक्ट द लास्ट फ्रॉम 10 बट अदर्स फ्रॉम 9। तो 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस 8 इज 1, एंड अब बचता है 9। तो ये आ गया आपके पास न्यूमरेटर एज 9919 डिवाइडेड बाय 625 माइनस 81, दिस इज 4, 12 minus 8 is 4, so this is 544, so you will be finding it by NT log of 9919 माइनस लॉग ऑफ 544। तो ऐसे आप करेंगे कैलकुलेशन, तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 18.23:1। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को आपको करना होगा नीट और जेई और फॉर बोर्ड MCQs, तो हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द रफ रेशियो। आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप दोनों को कम कर दो, दोनों रेशियोज को हल्का हल्का कम करो, या फिर आप दोनों रेशियोज को बढ़ाओ। तो मान लो हम कम करते हैं, क्योंकि कम करने से राउंडिंग ऑफ में बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। 9900 मैंने इसको ड्रॉप किया 19 को, और यहां से मैं ड्रॉप कर दूं 14 को, 14 को, तो मेरे पास आंसर बचता है 530। अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो 53990 अपॉन 53 का जो रफ आंसर आएगा आपके पास दैट विल बी अराउंड 18। ठीक है, राइट। न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 of state text, page number 74. Question is Earth's
mean temperature can be assumed as 280 Kelvin. How will actually this is a theoretical question. How will the curve of black body radiation look like for this temperature? Find out lambda max. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? ठीक है, ये आपको फाइंड करना है. सबसे पहले आपको एक बार वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व आया था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे. ऑन एक्स एक्सिस we have taken lambda in nanometer and on y-axis we have taken the emissive power corresponding to this lambda. जो सबसे डाउन वाला ग्राफ था आपके पास में वो ऐसा था and this was around 500 नैनोमीटर. अब आपको पूछा हुआ यहाँ कि अर्थ का मीन टेम्परेचर हम मान सकते हैं. मीन टेम्परेचर मीन्स ऑल ओवर एवरेजिंग अगर हम करें तो 280 केल्विन है. तो इसमें आप लगाओगे लैम्डा मैक्स क्योंकि आपको यहाँ मिल रही है मैक्सिमम एमिसिव पावर एंड यहाँ आपको मिल रहा है उस लैम्डा का करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है. दिस इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिसिव पावर. तो इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. तो जब भी आप किसी मेटालिक बॉडी या किसी स्फीयर को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर कम होता है सबसे पहले और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. तो जब भी कोई बॉडी कम गर्म होगी तो वो कलर शो करेगी रेड कलर. तो दिस रेड कलर इज शोन अराउंड एट 800 केल्विन. और जब ये बॉडी गर्म होती जाएगी और गर्म करते जाएंगे आप सो द टेम्परेचर विल बी 3000 केल्विन अराउंड. तब ये बॉडी आपको व्हाइट दिखने लगेगी, व्हाइट हॉट. और उस समय ये सारे रेडिएशंस एमिट करते जाएगी ऑल कलर्स. तो दिस इज लैम्डा m इंटू टी इक्वल्स टू वीन्स कांस्टेंट. बी लिया था हमने. तो आप यहाँ पर लैम्डा मैक्स फाइंड करना चाहते हैं. तो व्हाट इज लैम्डा मैक्स इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट divided by its temperature. तो put the value of Wien's constant and then divide by 280. अब कौन से पार्ट में आता है ये तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम के सारे वैल्यूज लर्न होने चाहिए ईदर फॉर फ्रीक्वेंसी और फॉर वेवलेंथ. तो यहाँ लैम्डा मैक्स का आंसर जो आपके पास आ रहा है 1.035 multiplied by 10 to the power minus 5 meter. So this comes in the spectrum microwave region आएगा. So this is in the microwave region. Next question is question number 24. इस क्वेश्चन काफी बड़ा है तो इसको हम लोग शॉर्ट लेटर्स इनिशियल में लिखेंगे. आप बुक में से रेफर कर लेंगे. A small blackened solid copper sphere of radius 2.5 centimeter is placed in an evacuated chamber. The temperature of chamber is maintained at
100 degree Celsius, at what rate energy must be supplied to the copper sphere to maintain its temperature at 110 degree Celsius. And Stephen's constant की value they have suggested at 5.76 into 10 to the power minus 8 Joule per second meter square Kelvin raised to 4, and they have suggested as that assume the copper sphere as perfectly black body. ठीक है, तो पहले आप गिवन डेटा लिख लेंगे. दिस इज रेडियस, यूनिट्स प्रॉपर कन्वर्ट करेंगे. तो इन मीटर इट बिकम्स लाइक दिस. अब जो टेम्परेचर एनक्लोजर का टेम्परेचर मेंटेन है वो पहले आपको गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस. So this will be in absolute temperature 373. अब बोला हुआ है आपको at what rate energy must be supplied. At what rate मतलब आपको find करना है Q by T, because this is the rate of heat energy supplied. ठीक है. अब to maintain its temperature at 110 मतलब आपको स्फीयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देना है. तो ये जो इवैक्यूएटेड चैम्बर था उसका टेम्परेचर था पहले 100, बट जब आप उसको एक्सटर्नली हीट सप्लाई करेंगे, ये आपने सप्लाई की हीट, बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पर सेकेंड आप कितनी हीट सप्लाई करें सो दैट इसका मॉडिफाइड टेम्परेचर हो जाए 110 डिग्री सेल्सियस. तो आपको रेट ऑफ हीट एनर्जी फाइंड करना है एंड द फाइनल टेम्परेचर इज 110, so it is 383 केल्विन. ठीक है, तो आपको फिर से यहाँ पर स्टीफेंस लॉ लगाएंगे. एज्यूम करना है आपको ब्लैक बॉडी, so no need to take the coefficient of emission or emissivity in the form of small e. So just take is equal to sigma T raised to 4 minus T0 raised to 4, because already उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस है. आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है एक्स्ट्रा 10 डिग्री सेल्सियस के लिए और 10 केल्विन के लिए. सो पुटिंग द वैल्यूज Q by AT is equal to sigma T to the power 4 minus T0 raised to 4. So putting proper values, लेफ्ट में हम रखेंगे Q by T और जो एरिया है वो हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में. So Q by T is in the left hand side. Value of sigma 383 raised to 4 minus 373 raised to 4 multiplied by area of the sphere will be 4 pi r square. So you can put all the values. Just I am telling you the calculation for both. How to calculate this raised to 4. तो इसको आप साइड में लिख लेंगे. इसको हम लॉग मेथड से करेंगे. So write in the side how to calculate 383 raised to 4. सीक्वेंस लेते हैं आप A, T, L. तो सबसे पहले आप लेंगे NT, फिर आप लेंगे पावर ऑफ जो भी लॉग है आपके पास, नंबर जो भी है. तो इसको लिखा मैंने सबसे पहले NT, फिर लिखा पावर और फिर लिखा लॉग ऑफ 383. तो आपके पास
ये आ जाएगा NT, दिस इज 4 इंटू 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास लॉग बुक है तो आप लॉग देख लो, 38 का 3 कॉलम, थर्ड कॉलम, दिस इज 5832. Now multiply this and then find anti-log. Similar is the calculation for 373 raised to 4, और दोनों की वैल्यूज पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ हीट एनर्जी. Now take the last question of state text. Question number 25. Find the temperature of a black body if its spectrum has a peak at, a question is lambda max equal to 700 nanometer. This is in visible range. Given है आपको ये क्वेश्चन में. Lambda max is 3 centimeter. This is in microwave region. ये भी आपको given है क्वेश्चन में. And third में lambda max है 3 meter. This is in FM radio waves region. और आपको सजेस्ट किया हुआ है टू टेक Wien's constant as 2.897. Wien's constant is B. Okay, Wien's constant is B. Wien's constant is 2.897 multiplied by 10 to the power minus 3 मीटर केल्विन. ये आपको 3 केसेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो हम लोग कोई भी एक केस सॉल्व करते हैं, रेस्ट इज फॉर यू. फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग एज यूजिंग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो वी विल बी टेकिंग नेक्स्ट स्टेप by taking Wien's constant. So what is the temperature? This is Wien's constant upon lambda max. अब जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रॉपर यूनिट्स का ध्यान रखना है. ये Wien's constant पुट किया. वेवलेंथ जब आप पुट करेंगे, check it. It is given in nanometer. So if you are putting just in nanometer, क्योंकि 80% बच्चे यूनिट्स में ही मिस्टेक्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है. तो ये आप कन्वर्ट करो पहले. What is 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter. ये सब मल्टीपल दे रहा है आपको. So it is 2.897 multiplied by 10 to the power minus 3 मीटर केल्विन अपॉन, यहाँ से आपने ये 2 zeros भी रिमूव कर दिए. सो दिस इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर और नैनो का लगाया -9. अब इससे आप अप्रॉक्स आंसर ओरली बता सकते हैं. दिस विल बी ग्रेटर देन 0.4. मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स एक साथ लिखेंगे, -3. यहाँ से डिनोमिनेटर से आपको पावर मिल रही है -7, जो कि न्यूमरेटर में आकर हो जाएगी +7. एंड देन 7 - 3 विल बी मेकिंग 4. तो इसका परफेक्ट आंसर मिल रहा है आपको 4138 केल्विन. तो इन द सिमिलर वे you can solve question number B and C.